آبیاری کی اور اپنے خون سے کربلا کی زمین کو سرخ کیا، کربلا کی زمین کو لال کیا، اپنے کنبے کو لے جا کر کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے کٹوا دیا اور اف تک نہیں کیا۔ امام علی مقام کی وہ ذات اللہ اکبر جس کی ہم جتنی تعریف کریں، جس کا ہم جتنا نام لیں کم ہے، ہمارے کلیجے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم امام کی گفتگو کو کما حقہ بیان کر سکیں، امام کے کارناموں کو کما حقہ بیان کر سکیں۔ آپ نے 10 روزہ پروگرام میں اب تک 8 روز تک آپ نے سنا، امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیان کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے کر دیا۔ امام کے سامنے بیٹے ذبح ہوتے رہے، امام کے سامنے بیٹوں کی قربانیاں ہوتی رہی، کربلا کی زمین لال ہوتی رہی، کربلا کی زمین چیختی رہی، آسمان چیختا رہا، زمین سے جو ہے آہو بکا کی فریاد ہوتی رہی، زمین اللہ کی بارگاہ میں لرز کر فریاد کرتی رہی، اے پروردگار کیا تیرے پیغمبر کا دین اب ختم ہو جائے گا؟ اے اللہ کیا تیرے پیغمبر کا دین اس طرح نابود ہو جائے گا؟ مولا اگر حسین نے اپنی قربانی دے دیا کون دین کے علم کو بلند کرے گا؟ کون دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا؟ کون دین کی باتوں کو لوگوں کو بتائے گا؟ یا اللہ تیرا پہچان کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے زمین سے بحال جو ہے خالق ذات سے فریاد کیا، زمین سن تو جانتی نہیں، یہ زمین ہے، یہ زمین ہم نے اپنے بیٹے کو اس لیے کٹوایا ہے تاکہ جو ہے کسی کو اسلام بتانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو اسلام سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب لوگ کربلا کی تاریخ کو الٹ کر کے دیکھیں، جب لوگ کربلا کی زمین کی طرف نگاہ کریں تو پھر کربلا کی زمین پر وہ لال خون، لال سرخی بتاتی رہے۔ یہ لوگوں اسلام اس خون کو کہا جاتا ہے، اسلام اس قربانی کو کہا جاتا ہے، اسلام ایسی جو ہے ایسی نایاب قربانیوں کا نام ہے۔ لوگوں اسلام پر جب آنچ آئے تو اپنے خون کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے مال کی قربانی دو، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ لوگوں حسین نے نمازیں پڑھی، ان کو اپنا لو، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ بہرحال امام علی مقام کے بڑے بیٹے حضرت امام علی اکبر 18 سالہ کی کڑیل جوانی لے کر کے کربلا کے میدان میں آپ پہنچتے ہیں اور پھر ظالموں کے درمیان حضرت امام علی اکبر نے حضرت امام علی اکبر نے پیاسا رہ کر کے بھی اپنی قربانی پیش کر کے دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والوں دیکھ لو، میں چاہ لیتا تو میرا باپ موجود تھا، میں باپ کی جدائی گوارا نہ کرتا۔ لوگوں اگر مجھے دولت سے محبت ہوتی تو میں اس نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر وہ نبی چاہ لیتا تو سونے چاندی کے پہاڑ نبی کے آگے پیچھے چلا کرتے۔ لوگوں میں نے سونے کو پسند نہیں کیا ہے، میں نے دولت کو پسند نہیں کیا ہے، میں نے ثروت کو پسند نہیں کیا ہے، مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں تھی، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ لوگوں مجھے اگر کسی چیز کی خواہش تھی تو تمہارے ایمان کے بچانے کی خواہش تھی کہ کل جب میدان محشر میں ہماری حاضری ہو اور نانے جان کے قریب ہم پہنچے تو نانے جان اگر ہم سے پوچھے، اے علی اکبر ہمارے دین کی حفاظت کس نے کی ہے؟ جو میرا خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے کہ ہمارے خون نے تمہارے دین کی حفاظت۔ حضرت امام علی اصغر نے اپنی قربانی پیش کر دیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اب امام علی مقام نے امام علی اصغر اکبر کو اپنے گود میں لیا، دیکھتے رہے۔ امام علی اکبر کے چہرے کی طرف امام کی نگاہیں ڈکی رہی، آنکھوں سے آنسو کے سیلاب نکلتے رہے۔ امام روتا رہا، اللہ اکبر، کون سا وہ باپ ہے جس کا بیٹا کسی میدان میں لوگوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو اور باپ کا کلیجہ
कलेजा ठंडा पड़ जाए। हजरात किसी बाप का कलेजा ठंडा ना होगा। कोई बाप अपने बेटे की मार को बर्दाश्त न करेगा तो बेटे के को जो है बेटे के खून को गिरता हुआ कैसे देख सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अली मकाम पर, इमाम हुसैन पर कि बेटे की लाश को अपने गोद में लिए हुए है। उधर बीवियों ने देखा अल्लाह कि हजरत इमाम अली असगर है जो अभी 6 महीने का बच्चा है, वो 6 महीने के बच्चे की जबान प्यास से सूख रही है, बच्चा जबाने को बाहर निकाल रहा है। कोई माँ जो अपने भूखे बच्चे को देखकर अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बैठ जाती हो। कोई माँ जो अपने बेटे की प्यास की शिद्दत को देखकर उसकी प्यास को न मिलाने की कोशिश करता है और बाप अपने बेटे की प्यास को मिटाता है। हर माँ अपने कलेजे के टुकड़े के पेट को भरा करती है, अपने बेटे की परवरिश करती है। कल ये मेरा बेटा मेरी परवरिश करेगा और मेरी हिफाजत करेगा। मेरा सामान है, जो मेरा सामान होगा, मेरी खिदमत का सामान होगा। लेकिन कुर्बान जाओ अली असगर है जो सामान को बाहर निकाल रहे हैं, प्यास का एक कतरा नहीं मिल रहा है, प्यास के लिए आप तड़प रहे हैं। और माँ ने अपने बेटे को 6 महीने के बच्चे को लेकर के आती है। आप सुनो, आप देख रहे हो हमारा खानदान कब चुका है, हमारा खानदान कब चुका है। कुंबा खानदान से करबला की जमीन शुरू हो चुकी है। अब मुझे किसी की कुर्बानी नहीं देनी, अब मैं किसी की कुर्बानी देना पसंद नहीं करती। आप मेरे सरताज सुनो, ये 6 महीने का बच्चा है, आप इसे लेकर के जाओ, जाकर के उन जालिमों के दरमियान खड़े हो जाओ। जालिमों को बच्चे की देख करके, बच्चे की मासूमियत को देख करके उन्हें तरस आ जाए और ये जंगों के ताल बंद कर दे, बेटे को हमारे खून पानी का कतरा दे दे। हज़रत इमाम अली मकाम ने जब 6 महीने बच्चे की तरफ देखा है, आपका दिल भर गया। हज़रत इमाम अली मकाम ने 6 महीने बच्चे को अपने गोद में लिया है, लेकर के उन जालिमों के करीब जा रहे हैं। ये जालिमों तुमने हमारे खानदान को काट डाला, जालिमों तुमने हमारे कुंबे को तहस कर दिया। जालिमों अब तो तरस खा जाओ, अब तो खामोश हो जाओ, अब ये जंगलों के राह बंद कर दो, अब ये कत्लों का आलम बंद कर दो। ये जालिमों में देखो कितना नन्हा बेटा है, काश तुम्हारा बेटा प्यास से तड़प रहा होता तो तुम क्या करते। लोगों, मैं अपने बेटे को लेकर के आया हूँ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इस बच्चे को जरा खून पानी का कतरा दे दो और तुम हमें मार दो। अब तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, अपनी तलवारों का निशाना तुम हमें बना लो, अपनी तलवारों से हमारी गर्दनें उड़ा दो। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो, और ये बच्चा तो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इस बच्चे के हलक में चंद घूट पानी के कतरे उतार दो। आप ये तकरीर करते रहे, जालिमों के सामने फरियाद करते रहे, लेकिन जालिमों में से कोई जाबिर ऐसा ना आया जो इमाम को घूट पानी का कतरा दे सके। यहाँ तक कि एक शख्स जिनको हुरमला बिन काहिनी कहा जाता है, अल्लाह अकबर, हुरमला बिन काहिनी ने अपने तीर का एक निशाना साधा और इमाम अली असगर के ऊपर चला दिया। इमाम अली असगर को बजाय पानी के आपके हलक पर वो तीर लगा और फिर इमाम अली मकाम के बाजू में आकर बेबस हो जाता है। वो तीर आकर के इमाम अली मकाम के बाजू में बेबस हुआ, खून का फव्वारा छूटा। वो नन्हे 6 महीने के बच्चे के जिस्म नाज़रीन से खून का फव्वारा छूटा। इमाम ने खून के जो है खून को अपने चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ अपनी निगाह को उठाया। ए आसमान, इस खून के कतरे को क्या तेरी तरफ भेज दो। आसमान चीख उठा, खबरदार हुसैन, अली असगर के खून को हमारी तरफ न उठाया, वरना क़यामत तक कभी आसमान रहमत की बारिश न करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहीदाने करबला, ज़िक्र शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मकाम में खून का चुल्लू लिया, सोचा जमीन पर डाल दो। जमीन चीखने लगी, जमीन लरजने लगी, जमीन चीख करके फरियाद कर रही है, ज़बाने हाल से कह रही है हुसैन क्या हम ही रह गए हैं इतने वास्ते के खून को पीने के लिए? हे हुसैन क्या तेरा ही कलेजा ऐसा है जो नबी के नवासे के खून को हम पिए? हे हुसैन खबरदार, अली असगर का खून को जमीन पर न डालना, वरना कयामत तक नबी की उम्मत इसी सबसे से कोई फल न खा पाएगी, जमीन कभी कोई सब्जा न उगाएगी। हज़रत इमाम अली मक़ाम ने जमीन पर भी खून न डाला, बल्कि उस खून के चुल्लू को अपने चेहरे पर मर दिया। है कोई बाप ऐसा कि जिसके बेटे की गर्दन कट रही हो और खून का चुल्लू बनाकर अपने हाथ में लेकर और सोच रहा हो और फिर चेहरे पर शिकन तक न आई हो? थोड़ी देर के लिए मुसलमानों अपने कलेजे पर हाथ रखो, रख करके सोचो कि तुम्हारे बेटे को काटा जा रहा हो, तुम्हारे बेटे को मारा जा रहा हो, तुम्हारे बेटे की गर्दनें उड़ाई जा रही हो, तुम्हारे खानदान को जबा किया जा रहा हो, तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। फैसला करो करबला वालों पर कि उनके दिलों पर क्या बीती होगी, क्या इमाम के दिल पर बीती होगी। इमाम अली मकाम ने खून का चुल्लू अपने चेहरे पर मर लिया, अल्लाह अकबर, और फिर ऐलान किया बारे रहा ये एक अली असगर है, इस्लाम के लिए अगर कटवाना हो तो एक अली असगर नहीं, ऐसा 1000 अली असगर हो तो तेरे नाम पर कुर्बान माशाअल्लाह। इमाम अली असगर को सलीमों ने तीर चला दिया और आज उसकी अदा नाफिज़ी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मुसलमानों, कलेजे में बड़ी तकलीफ होती है, जब देखोगे ना तो फिर तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। हज़रात राफिज़ियों को मैंने देखा है, उनके गांव में मैंने तालीम दी है, मैंने अपनी आंखों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। 7वीं मुहर्रम को वो लोग अली असगर की तस्वीर बनाते हैं, अली असगर की तस्वीर बनाते हैं और बनाने के बाद लकड़ी के तीर और कमान बनाते हैं, दूर चल करके उस पर निशाना लगाते हैं और कहते हैं हम सही हज़रात। और आज उन्हीं के करतूतों पर हम अमल कर रहे हैं, कहीं आग का गड्ढा खोद रहे हैं, उन आग पर हम चल करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम आग पर चल करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हुसैन को आग में जलाया गया था? हुसैन ने कभी आग पर अपने कदम को रखा था? हुसैन के किसी घर वाले ने कभी आग को छुआ था? जी नहीं। आग से मोहब्बत ना करो, अगर आग से मोहब्बत करोगे तो मरने के बाद वही आग तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। अल्लाह इससे दूर रहो, ये हराम तेल है, इससे बात रहो, इससे परहेज करो। आग पर चलना कोई अच्छी चीज नहीं है। अरे कुछ करना ही चाहते हो, इमाम की सलीम लगा दो और फिर प्यासों को पानी पिलाते रहो, रात से लेकर सुबह तक पानी पिलाओ, पूरा दिन पानी पिलाओ और फिर पूरा महीना तक पानी पिलाते रहो, सलीम पिलाते रहो, गरीबों को खाना खिलाते रहो, नंगों को कपड़ा पहनाते रहो। खुदा की कसम इससे बेहतर काम तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ कहना करना ही चाहते हो तो इमाम के लिए मैं फातिहा खानी की महफिल को रचाओ, इमाम का नाम लेवा बन जाओ। आओ अब आगे हम अपनी दास्तान को लेकर के चलते हैं। इमाम अली असगर को लोगों ने तीरों का निशाना बनाया, इमाम अली असगर को शहीद कर दिया। अब बारी आई, अब बारी आती है इमाम अली मकाम की, फातिमा के राबले का आखिरी दीदार है। हर्ष का मैंने जो है हर्ष का मैदान होता है जब इमाम अहले बैत हज़रत इमाम अली मकाम कह रहे हैं अपनी बहन ज़ैनब को के पास जा रहे हैं, मेरी बहन ज़ैनब आप देख रही हो करबला में जितने लोग हमारे साथ आए थे सारे लोग करबला में शहीद किए जा चुके और कासिम आए दूल्हा हमने बना के भेज दिया है। अकबर अली अकबर आए, हमने उन्हें दूल्हा बना के मैदान कारज़ार में भेजा था और फिर जितने लोग आए अब्बास आए, मैंने उनको दूल्हा बना करके भेजा था। जितने करबला में मुसाफिर आए थे सारे लोगों को हुसैन ने दूल्हा बनाया और करबला के मैदान में भेजा था। करबला का दूल्हा बना करके हमने भेजा। मेरी बहन ज़ैनब आज तेरा भाई अकेला पड़ गया है, आज इसके साथ कोई नहीं है, आज इसका साथ देने वाला कोई नहीं। मेरी बहन ज़ैनब अब मैं आपकी
को पुकारूं। हजरत ज़ैनब ने इमाम अली मकाम को दबोच लिया, कहा मेरे भाई तुझे क्यों परेशान क्यों होता है? अरे सुन, अब्बास को दूल्हा तूने बनाया, कासिम को दूल्हा तूने बनाया, असगर को दूल्हा तूने बनाया, अकबर को दूल्हा तूने बनाया। अब यहाँ तुझे दूल्हा बनाने के लिए करबला में कोई मर्द नहीं रहा, तो मर्द न रहा ना सही, आज तेरी बहन ज़ैनब तुझे दूल्हा बनाएगा। जिंदाबाद। हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत अली के संदूक को खोला, आपका संदूक रखा था, संदूक को खोला, खोलने के बाद आपने कुबाइल मिस्री निकाला और उसे ज़िब्बन किया। हज़रत जाफर तैयार का नेज़ा उठाया और हज़रत अली की ज़ुल्फ़िकार को अपने हाथ में लिया। हज़रत अली का जो घोड़ा था, अल्लाहु अकबर, उस घोड़े को इमाम अली मकाम ने सजाया, उसकी पीठ पर थपथपाया, कहा मेरे घोड़े सुनो, तुम मेरे नहीं, तुम मेरे बाप के घोड़े हो। आज ये बताओ क्या तुम हमारा साथ दोगे? घोड़े ने बज़बान हाल कहा हुसैन सुनो, जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, ए हुसैन तेरे ही नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। मैं एक नहीं, ऐसे हजार हो मेरी तरह, तो सब तुझ पर कुर्बान हो जाएंगे। और हुसैन तू पहले मेरी पुष्ट पर सवार तो होगा, फिर देख मेरे तमाशे को मैं क्या करता हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम अली मकाम ने जाफर तैयार का नेज़ा लिया, ज़ुल्फ़िकार हैदरी को उठाया और फिर घोड़े पर आप सवार हुए, खुद को सर पर रखा, ज़िरा को पहना, अल्लाहु अकबर लेकर के अब घोड़े पर आप सवार होते हैं। अब घोड़े पर जब आप सवार हुए, घोड़े की आंखों से आंसू निकलने लगे, वो घोड़ा हुसैन को पुष्ट पर सवार करते रोने लगा। हज़रात जानवर भी हुसैन की शहादत को देखकर आंसू बहा दे, लेकिन ये इंसान कितना पत्थर दिल इंसान है। इस इंसान की गैरत मर गई जो हुसैन से मोहब्बत को बताए उनके दुश्मनों के करतूत को अपनाता जा रहा है। मुसलमानों, जानवर समझ रहा है इस्लाम के लिए हुसैन जा रहा है, ये इंसान नहीं समझता हुसैन ने किस लिए अपनी शहादत दी है। इंसान नहीं समझता, इंसान को समझना चाहिए। हज़रात घोड़े की पुष्ट पर इमाम अली मकाम सवार होते हैं और घोड़े ने वो जो है, घोड़े ने जो अपने कदम को बढ़ाया था, दौड़ करके हज़रत ज़ैनब ने घोड़े के लगाम को पकड़ा था और इमाम अली मकाम से कहा था मेरे भाई सुनो, जब कासिम लड़ने के मैदान कारसार में गए तो तू लेकर के चला था, अकबर गए थे तो तू लेकर के चला था, असगर गए तू लेकर के गया था, अब्बास गए तो तू लेकर के गया था। आज तुझे घोड़ा तरह कैसे ले जाने दे सकते हो? मेरे भाई आज तेरी बहन तेरे घोड़े पर लगाम पकड़ेगी। मुसलमानों गौर करो, हमारी माँ बहनों को भी सोचना चाहिए। इस्लाम ने तुमसे कुर्बानियां नहीं मांगी है, इस्लाम ने तुमसे जान की कुर्बानी नहीं मांगी, तुम्हारे बेटे और बाप की कुर्बानी नहीं मांगी, तुम्हारे शोहरों की कुर्बानियां नहीं मांगी। अगर इस्लाम ने तुमसे कोई कुर्बानी मांगी है तो तुमसे ये कहा अपने शोहरों की खिदमत करो और इस्लाम से मोहब्बत करो, नमाज को अपना लो, इस्लाम को अपना लो, तुम्हारी जिंदगी समझ इमाम के घोड़े की पांख को पकड़ती है, आगे आगे ज़ैनब चल रही है, पीछे इमाम घोड़े पर सवार करबला का दूल्हा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। कुछ दूर आप चलती हैं और अपने भाई से कहती हैं मेरे भाई अब यहाँ तक मेरा आखिरी सफर है, अब मैं यहीं से वापस होती हूँ। मेरे भाई मैं अब आखिरी सलाम, आखिरी विदाई तुझे कह करके और फिर मैं यहाँ से रुखसत करती हूँ। हज़रत ज़ैनब ने आखिरी सलाम किया और इमाम अली मकाम ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। ज़ालिमों का लश्कर 22,000 का, अल्लाहु अकबर, उन लश्कर के दरमियान इमाम का घोड़ा पहुँचा जा करके खड़ा हो गया। हज़रत इमाम अली मकाम ने पुकारा ए इंसान, एक खूनी, एक सिमर सुनो, तुम लोग क्या जानते हो, तुम लोगों ने जो है कितने जुल्म तशद्दुद किए हैं। अरे तुम लोगों ने हमें तुम ही लोगों ने तो बुलाया था, खत देकर तुम लोगों ने न बुलाते तो हुसैन कभी करबला में ना आता, तुम ही लोगों ने बुलाया था और तुम ही अंदर जुल्म कर रहे हो। ये लोगों जरा तरस खाओ, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, वरना मरने के बाद कल क़यामत में नाने जान के
सामने जाकर के तुम क्या मुंह दिखाओगे, किस चेहरे को लेकर के तुम हमारे नबी के पास जाओगे। जब कभी नबी ने तुमसे पूछ लिया तो उसका तुम्हारे पास कोई जवाब न होगा। इसलिए लोगों अब जंगो जदाल से बाज आ जाओ। ऐ लोगों तुम अब ये जंगो जदाल मिलकर खूनरेजी को बंद कर दो। लोगों सुनो, हमें तुम इजाजत दे दो, मैं जहाँ से आया हूँ वही चला जा रहा हूँ। ये लोगों अब हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारे घरों की कुर्बानियाँ बहुत हो चुकी है, हमने बेटों की कुर्बानियाँ दे दी, अपने दिल पर पत्थर रख करके हमने सबकी कुर्बानी को बर्दाश्त किया है। अल्लाह अकबर। जालिमों ने कहा अल्लाह अकबर, हुसैन अगर तुम लड़ाई को बंद करना चाहते हो, अगर जंग को खत्म करना चाहते हो तो तुम पर लाजिम है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैअत कर लो। तुम यजीद की बैअत करो, फिर तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तुम्हें छूट दिया जाएगा। हुसैन ने कहा जालिम तू धमकियां देता है, यजीद की बैअत करता है। अरे सुन, हर जुल्म सही, हर जफा कर रहा है। मैं नबी से कहूंगा कि या रसूल अल्लाह तू एक बार कह दे तू क्या कहना है बाप। मुस्तफा का दीवाना हूँ, मैं मुस्तफा के घर का बेटा हूँ, मैं इस तरह से तेरी बातों पे आ जाता हूँ। क्या यजीद की बैअत आसान है? मैं यजीद की बैअत कर लूँ और फिर दीने मतीन को दागदार कर दूँ? क्या दीने मोहम्मदी पर दाग लगा दूँ ताकि कयामत तक दीने मोहम्मदी पर दाग रहे, जब तक कयामत तक दीने मोहम्मदी पर लोग एतराज करते रहे, लोग इस दीन को गालियाँ देते रहे, इस दीन को लोग उल्टी सीधी बातें इस ताल्लुक से करते रहे। अरे सुनो, हम अपनी जान देना पसंद करेंगे लेकिन अपने दीन पर आ जाए हमें कभी ये गवारा न होगा, हम कभी इसे पसंद नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, उसके बाद लोगों ने कहा कि हुसैन अपनी तकरीर को बंद करो। रात सालिमों, मैं तकरीर कब तुम्हारे सामने कर रहा था, मैंने तो के लिए तुमसे बात की थी। अब ये मैं जो है मैं इस बात से बरी हो गया कि कल जब मैं मैदान महशर में हाजिर होगा, जब हमारी हाजिरी मैदान महशर में होगी और फिर वहाँ पहुँचने के बाद जब हमसे इस तेरे बारे में पूछा जाएगा कि ये हुसैन तुमने लोगों को समझाया था कि नहीं, तो अब हम ये न कह सकेंगे कि हमने नहीं कहा था। अब हम इस चीज से बरी हो गए, हम बर्चस्ता एलानिया कहेंगे कि आके अल्लाह के पैगंबर एक परवरदिगार, हमने तेरे दीन की दावत लोगों को दी थी, हमने लोगों को तमाम बातें बताई थी, लेकिन जालिमों ने नहीं माना। अब हमारी बात खत्म हो गई। इतना कहने के बाद और उन लोगों ने एक शख्स को जिसका नाम तमीम बिन कहतबा कहा जाता है, उसे अमर बिन साहब ने कहा, ए तमीम देखता क्या है? अरे अगर हुसैन इसी तरह तकरीर करता रहा तो देख रहा है कहीं मजमे का रूप बदल ना जाए और कहीं इस लश्कर का रूप बदल ना दे। एक तमीम सुनो, तुम इमाम हुसैन के मुकाबले में जाओ और जाओ उसके मुकाबले में जंग करो। वो यजीद की बैअत को कभी जो है कबूल न करेगा, यजीद की बैअत को कभी न मानेगा, इसलिए तुम वहाँ जाओ। तमीम बिन कहतबा हाथी की तरह दौड़ता हुआ और चिंघाड़ता हुआ इमाम के मुकाबले में आया और कहा, ए हुसैन तुम हमें पहचानते हो? मैं कहतबा हूँ, मैं तमीम बिन कहतबा हूँ, कहतबा का बेटा तमीम हूँ। मेरी ताकत का यहाँ लोग लोहा मारते हैं, मैं शामी पहलवान हूँ, पूरे शाम में मेरी ताकत का सिक्का चलता है, मेरी ताकत का लोहा मारा जाता है, मेरी ताकत का लोहा मारा जाता है। हज़रात मोहतरम, इतना कहना था कि तमीम बिन कहतबा ने अपनी तलवार को संभाला था। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने उसकी तलवार को देखा, तमीम बिन कहतबा वार करना ही चाहता था और जैसे ही उसने अपनी तलवार को उठाया था, इमाम ने पलट करके उसकी तलवार चलने से पहले इमाम ने अपनी तलवार का ऐसा चीखा तिलावार किया कि पूरी तौर पर कीड़े की तरह उसके पैर को काट करके अलग कर दिया। इतना देख करके अल्लाह अकबर, एक दूसरा शामी पहलवान आता है, एक दूसरा शामी पहलवान आया, फिर उसने कहा, ए हुसैन, अरे वो तो तमीम बिन कहतबा था, उसे तो लोगों ने इसे ही कह दिया तुम्हारे पास आने के लिए, काश पहली बार मैं आया होता, मेरा एक शर्त भी तुम बर्दाश्त न कर पाते। और इतना कह करके वो इमाम के मुकाबले में आया और कहा, इमाम तुम जानते हो हजारों के
लश्कर में मैं अकेला तनहा काफी होता हूँ, हजारों के लश्कर में अगर मैं घुस जाऊँ तो सारे लोग डर कर अपने घरों में चले जाते हैं। हमारी तलवार के जौहर को जब लोग देखते हैं तो उनके दांत खट्टे हो जाते हैं और वो जो है उनके अंदर जो है उनके अंदर कपीतारी हो जाती है। कहा जालिम तेरे अंदर बात ही रह गई है या तेरे अंदर कुछ हुनर भी है, अगर कुछ हुनर तरीका जानता है तो उसे मेरे सामने लेकर के आ। वो इतना सुना, गुस्से से तिलमिलाते हुए अपने जो है अपने कमान को उठाया, अपने नेज़े को उठाया, नेज़े को चलाना चाहा। इमाम अली मकाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को घुमाया और उसके नेज़े पर ऐसा मारा, उसका नेज़ा दो टुकड़ा हो गया और नेज़ा दूर जा गिरा। और इतना कहने के बाद उसने फौरी तौर पर अपनी तलवार संभाली, हुसैन पर वार करना ही चाहता था। जैसे ही तलवार लेकर के झपटा है, हुसैन ने उसके करीब जाकर के उसके कंधे पर ऐसा वार किया कि कंधे से चीर कर कमर तक तलवार पहुंच गई और वही वो खेल हो गया। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम के इस जंग को देखकर लोगों के अंदर हरास तारी हो गया, खौफ तारी हो गया। तीसरी मर्तबा बदर बिन सुहैल एक शख्स था जिसने कहा, ए अमर, अरे तू कैसे गवारों को इमाम के मुकाबले में भेजता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अली मकाम बदर बिन सुहैल ने कहा, अमर तू कैसे कैसे गवारों को इस जंग में भेजता है? अरे तू हमारे 4 बेटे हैं, उन चारों बेटों में से किसी एक को भेज। अभी देख यहाँ से गया उधर हुसैन का सर लेकर के आ जाएगा। इतना कहना कह करके बदर बिन सुहैल ने अपने बेटे को भेजा। आवाज दी, कहा अपने बेटे को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, देखो हुसैन ने क़यामत सुग़रा बर्पा किया है और जितना तुम जल्दी जाओ हुसैन का सर लेकर के आओ, याद रखो खाली हाथ ना आना। इतना कहने के बाद जब उसका बेटा आया, जैसे हुसैन के पास आया, अभी कोई गुफ्तगू ना हो पाई थी, अभी कोई बात ना हो पाई थी, अभी बदर बिन सुहैल का बेटा तलवार भी न संभाल पाया था। तब तक हैदर के शेर ने, अली के लाल ने अपने जुल्फ़िकार को उठाया और उसको वहीं धर कर दिया। उसके बाद जो है जमीन पर गिरा। बदर बिन सुहैल गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपने घोड़े पर कूद करके बैठा। कहा, हुसैन वो मेरा बेटा था, तूने उसे संभलने का मौका तक न दिया। अरे वो मेरा बेटा था, तूने मेरे बेटे को काट डाला, तूने मेरे बेटे को जहन्नम रसीद कर दिया। ए हुसैन, आज तो मेरे मार से बचने वाला नहीं है। ए हुसैन, आज मेरी तलवार की ज़िद बर्दाश्त न कर सकेगा। जो जानता है यहाँ से लेकर मक्के तक अगर किसी की तलवार चलती है तो बदर बिन सुहैल की तलवार चलती है। अगर शाम में कोई माना जाता है बदर बिन सुहैल माना जाता है। कूफे की खड़ियों में अगर नाम लिया जाता है बदर बिन सुहैल का नाम लिया जाता है। अगर दमिश्क वगैरह में अगर कोई ऐसे जंगजू की जरूरत पड़ती है तो बदर बिन सुहैल को याद किया जाता है। ए हुसैन, तू मेरा मुकाबला क्या करेगा? अरे जहाँ से आया है वहाँ पर चला जा, तू मुझसे लड़ने की ताब नहीं रख सकता, मेरा मुकाबला तू नहीं कर सकता। हुसैन ने कहा, सालिम तू जो है, मैं तेरे बारे में क्या जानूं, तू पहले मुझे जान ले कि मैं कौन हूँ। मैं नबी के जो है नबी का नवासा हूँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जिस अली ने अल्लाहु अकबर जब भी नारे हैदरी लगाया है, जब भी उस अली ने चाहा है, कभी बाबे खैबर को उठा के फेंक दिया, कभी जिन्नातों के मुकाबले में तक गया, कभी बाबे के दस्तों को उखाड़ करके रख दिया और कभी जब कूफे में दाखिल हुआ, कूफे जब आबाद हुआ तो उसी अली ने पहले कूफे में फतह किया था। उसी अली ने कूफे पर अपनी तलवारों के जो है तलवारों की नोक से कूफे को आबाद किया था। और फिर जो है जो मुझे धमकियां देता है, मैं उसी अली का बेटा हूँ। अरे अली की एक ज़रूरत कोई बर्दाश्त न कर सका तो उसके बेटे की हालत क्या होगी? उसके बेटे की ज़रूरत का तू बर्दाश्त करेगा? अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है तो हुसैन के मुकाबले में आकर के दिखा दे। तुम समझते हो कि हुसैन जो है हुसैन कमजोर हो गया, हुसैन कमजोर नहीं हुआ। अरे हुसैन जान दे देगा लेकिन यजीद की बायत कभी न करेगा। तुम एक एक करके आते रहो और मैं एक एक करके जहन्नम रसीद करता
حضرات ہمت اٹھا، تم مسلمان ہو، اسلام کے سپاہی ہو تم۔ کل ایک وقت تھا تمہیں نے اسلام کے علم کو بلند کیا تھا، اور آج تم ہی ہو جس کے بنیاد پر اسلام پامال ہوتا تھا۔ کل کا معاملہ یہ تھا کہ تمہارا ایمان مستحکم تھا، کل معاملہ یہ تھا کہ تمہیں قرآن سے محبت تھی، تمہیں نبی سے محبت تھی، دین اسلام سے الفت تھی، اور آج تو تم نے قرآن کو جانا ضرور ہے، قرآن دیکھتے ضرور ہو، قرآن پڑھتے ضرور ہو، لیکن وہ محبت تمہاری ختم ہو گئی۔ مسلمانوں اسی محبت کو واپس لے کر کے آؤ۔ اور عالم سلطان پوری نے بڑے اچھے انداز میں سے لکھا تھا، آج سے پورے 14 صدی پیشتر تم جہاں دے چلو پھر وہی لوٹ کر، کب تک آنسو بہاؤ گے اے مومنو، تم کو تو مسکرائے بہت مسلمانوں۔ بدر بن سہیل امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور وہ اپنی بڑی بڑی ٹینگیں چلاتا رہا، بڑی بڑی ٹینگیں مارتا رہا۔ حسین نے کہا اے بدر یہ دیکھ لے ہمارے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، اے بدر دیکھ جعفر طیار کا نیزہ ہے، یہ وہ نیزہ ہے جس کا وار کبھی خالی نہ گیا، یہ وہ ذوالفقار حیدری ہے جسے علی چلاتے نہیں تھے، علی کا اشارہ ہوا تلواریں چلا کرتی تھی، اور یہ علی کا وہ گھوڑا ہے جس گھوڑے پر جب علی سوار ہوتا تھے تو علی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صفوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ گھوڑا خود ہی صفوں کو چیرتا چلا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدر بن سہیل نے جب حسین کی اتنی بڑی باتوں کو سنا، حسین کی باتوں کو سن کر کے پھر اس کے ہوش فاختہ ہو گئے اور غصے میں لال پیلا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے آپ میں یہ محسوس کیا کہ آج حسین ابن علی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، لے کر کے اپنی تلوار کو آگے بڑھا، اتنا بھرپور اتنی طاقت سے وار کیا تھا، اور اے حسین ذرا میرے نیزے کی جو ہے مار کو سنبھال دے، میرے نیزے کے وار کو ذرا روک کر کے دکھا، جس ڈھال کی تو تعریف کرتا ہے ذرا اس ڈھال کی اپنے جوہر کو تو دکھا دے۔ امام عالی مقام کے اوپر اس نے بھرپور پوری طاقت سے اپنے نیزے کا وار کیا تھا، امام عالی مقام تھوڑا دور ہٹے، نیزہ دور جا کر کے گرا، اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ اس نے جب دیکھا کہا اے حسین یہ تو ایسا وار تھا، اتفاق تھا جو تو بچ گیا، ورنہ میرے نیزے کے وار سے کوئی آج تک بچ نہ سکا ہے۔ امام نے کہا ظالم جتنے داؤ تو جانتا ہے اپنے سارے داؤ پیچ کو تو آج آزما لے، اور دیکھ جو ہے کس سے تیرا مقابلہ ہے، آج تجھے دیکھنا ہوگا، اور آج تجھے سوچے گا کہ آج جس سے تمہارا مقابلہ ہے اگر تجھے عمل رسید ہوتا ہے کہ آج ہماری گردن کو تو ادا کرتا ہے۔ اتنا کہا پھر بدر بن سہیل نے اپنی تلوار کو اٹھایا تھا اور کود کر کے وہ وار کرنا چاہتا تھا، امام نے اپنی ذوالفقار کو اٹھایا اور جعفر طیار کے نیزے پر اس کی تلوار کو روکا تھا، صرف ایک طرف تلوار کو روکا، دوسری طرف اپنی تلوار کو اٹھایا، بدر بن سہیل کو اس طرح سے چلایا کہ اس کی کمر دونوں طرف سے الگ ہو گئی، بدر بن سہیل زمین پر جو ہے لیٹتا نظر آیا، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر میں ہو کر تکبر بہ گیا، موجود جسم